یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ معاذ اللہ۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان بے کروں؟ شک۔ یہ شریر ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، جی تمہاری طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے پورے دنیا کو پیدا کیا، اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ کی آخری نبی ہے اور جن کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو ایمان ملا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی اور عیسائی میں ہمیشہ لڑائیاں کیوں ہوتی تھی، اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے، اور ساتھوں ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے نبی کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی قوم اور عیسائی قوم، ان ساری قوم کی کتابوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس طریقے کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام ان ساری قوموں کی کتاب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام کس طریقے سے آیا ہے، اسی طرح کا بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر پلے کرتے ہیں۔ اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہیں؟ اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں شروع سے چلتا ہوں۔ جی یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، جی جی یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام یعقوب نبی علیہ اللہ کے، السلام، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ بے شک۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی ایک قوم کا نام ہوتا جی جی، وہ اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ جیوز کہتے ہیں، بے شک۔ جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ معاذ اللہ۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان بے کروں؟ شک یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، جی جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ انہی نے یہ کیا۔ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، جی ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کروں بے گا۔ شک میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں کروں گے، بے شک۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔
ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला 30 पारा, पारा। दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। बेशक जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर यकीन है, इत्तेफाक है। बेशक। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, जी तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। सुभान अल्लाह। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है। और मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं और बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिज़दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहाँ है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक व किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहाँ जमा किया? यही फारान की चोटियों में। ये पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ए मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही
جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا ہے، آج تک چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے، تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ کون سے نبی؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثنا میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے، سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے، بے شک، عبرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में यानी अपने मुनाजात में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूज, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। अब आते हैं, ये थोड़ी सी झलक है ईसाइयों के इस दीन में जिसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हैं, क्रिश्चियन हैं। इन लोगों का क्या दीन है, क्या मजहब है, इंट्रोडक्शन के लिए बड़ा वक्त लग जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैरोकार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को ये जीसस कहते हैं और उसको यसू मसीह भी कहा जाता है उर्दू में, जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं। लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वो हमला हुआ। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह की निशानी। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई है यहूदियों ने कि नहीं ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, अल्लाह अल्लाह, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तसलीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना, ये ईसाइयों के दीन में आ गया। ये तीन तीन खुदा मानने लग गए, एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं, मरियम को मैरी कहते हैं, मैरी भी गॉड है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर। हरगिज ना इस्तेमाल करें, अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, हमारा अकीदा ये। लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो तीन खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए, जो आज तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं, ये कहाँ है, ये बात कहाँ है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है, चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही है? नहीं। आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है, मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं।
मोहम्मद हमारे बड़ी शान शान वाले हैं सर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा? वही अव्वल है, वही वही आखिर है। आखिर यस है। सर। तो अव्वल हमेशा से वो उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो 4 नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं, वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, आएगा नहीं। जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, बेशक, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां, क्या हैं? तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है। और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे। तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है, जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्दाक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटोस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटोस रहमत वाला, वो मदीने वाला है, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा पांव चूमने? सबके सब फिर मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई? वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे, तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या? जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए, यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा हैं। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा कि जा अंदर देख कर क्या ईसा है कि नहीं है। वो अंदर गया, मेरे रब की हिकमत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आसमानों पर उठा लिया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दी थी। अल्लाह, जो ढूंढने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की आधी शक्ल, चेहरे से लेकर या पेट तक की शक्ल उसको अल्लाह ने दे दी। अब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया, तो बाहर जो कत्ल के मंसूबे से खड़े थे उन्होंने कहा उसका क्या इंतजार करें, हमला करो,
हमला करो, धावा बोल दो, घर पर सब घुस गए। अंदर आए तो जोश में होते, जैसे आतंकी जोश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता किसको मार रहे हैं किसको जला रहे हैं। ये अंदर आए, देखा पलंग पर ईसा की शक्ल है अलैहिस्सलाम, उसको पकड़ा और कैद करके लाए, उसे मारा और ला करके सूली पर चढ़ा दिया, उसको फांसी दे दी। फांसी दे दी किसको? ईसा। किसको फांसी दी है? अब सबको मालूम होना जी, चाहिए। जी, ईसाइयों को भी रूप मालूम दिया नहीं था, यहूदियों को भी मालूम नहीं था किसको फांसी दी, क्योंकि ये बताने के लिए अब कोई नबी ही तो आना चाहिए। हुआ क्या था अंदर घर में, हुआ क्या था, कौन बताएगा? यहूदी जल्दी से पकड़कर लाकर फांसी तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको खुद को टेंशन होने लगा कि हमने ईसा को फांसी दी तो हमारा आदमी कहाँ गया? हमारा आदमी कहाँ गया? हाँ। जिसको चेकिंग के लिए भेजा था वो गायब भी हो गया, वो कहाँ गया? और अगर ये हमारा आदमी है, क्योंकि नीचे से हमारा ही दिख रहा है, पैरों तक अल्लाह ने बदला नहीं था, आधी शक्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दी थी, नीचे से देखने में तो ये हमारा ही लग रहा है, और ये अगर हमारा है तो फिर ईसा ईसा कहाँ कहाँ गया? गया? इसी टेंशन में मालूम है 500 साल गुजर गए। अल्लाह, इस टेंशन में 500 साल गुजर। अब बेचारे ईसाइयों को ये भी नहीं मालूम था। ईसाइयों को कौन बताएगा? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हमारे नबी तक बीच में कोई नबी नहीं आए, नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जब उठा लिया गया, तब से तारीख शुरू हुई। जो आज हम तारीख में बैठे हुए हैं 2021 में, ये 2021 से पहले का वाकया है। अब तारीख वहां से शुरू हुई। ठीक 570 साल गुजर चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। झगड़े चलते रहे ईसाइयों के और यहूदियों के, ये इनको कत्ल करते थे, वो इनको कत्ल करते थे। कई बार बैतुल मुकद्दस को लूटा गया, कभी ईसाई वहां पर काबिज होते थे, कभी यहूदी काबिज होते थे, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस था, यहूदियों के लिए भी मुकद्दस था। लड़ाइयां चलती रहती थी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे और उनको कहते थे कि वो फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ। बीबी मरियम को जिना की तोहमत लगाते थे। ईसाई सफाई देते रहते थे, नहीं वो अल्लाह की तरफ से आए थे। बाद में फिर इनका भी बिगड़ गया अकीदा, नहीं अगर ये बार बार कह रहे हैं कि ईसा के बाप नहीं थे, कैसे हो गए, कैसे हो गए, तो ईसाई बोलना शुरू कर दिया उनका बाप तो अल्लाह ही था, खुदा ही था। तो ये उनसे बचने के लिए इसी टेंशन में 550 साल चले गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मदीने तैयबा में आए तो इन लोगों के झगड़े देखे। मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। क्यों थे ये लोग पहले से यहाँ पर? बड़ा तवील वाकया है। ये गांव भी नहीं था, शहर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मदीना कुछ भी नहीं था। एक बार यमन का बादशाह वो हज के लिए आया था, खाने काबा का तवाफ करने के लिए। उसके साथ 700 उलमा थे। कितने? 700 उलमा थे। वो जब वापस जा रहा था तो वो उलमा जो तौरात भी जानते थे, इंजील भी जानते थे, उन्होंने सारी अलामतें मेरे नबी के आने की पढ़ ली थी। उन्होंने जमीन को देखा और पहचान लिया, कहा वो आखिरी रसूल जो आएंगे वो इसी जमीन पर आएंगे। क्योंकि हमारी किताबों में लिखा गया है, अरब के सहरा में एक चटेल में एक जमीन ऐसी होगी जो पहाड़ों से घिरी होगी और दरख्त खजूरों के कसरत से होंगे, वहां हरियाली होगी, उसके बीच में वो रसूल आखिरी जमाने में आएगा। उन लोगों ने पहचान लिया यही जमीन है। तो वो ईसाई और यहूदी जो उलमा थे, वो 700 उलमा बादशाह के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे और उस नबी का इंतजार करेंगे, वो जब आएंगे हम उनके इंतजार में रहेंगे। तो मदीना बसाया गया था किसके लिए? मेरे नबी के इंतजार में। उससे पहले वहां आबादी नहीं थी, कोई आबादी नहीं, और बसाया ही नहीं, यहूदियों ने, यहूदी ही इंतजार में आकर के मदीने में रहे। और इतना ही नहीं, वो बादशाह ने उनके लिए, सबके लिए घर बनाए, एक आबादी बनी, और अपना एक लेटर भी दे करके गया कि अगर वो नबी आ जाए तो मेरा ये खत उनको दे देना कि मैं भी उन पर ईमान लाता हूँ। इस वाक़े को कई 100 साल गुजर गए, लेकिन वो खत महफूज था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो आप सबको मालूम है, मैं तवालत में नहीं जाता, तफसील में नहीं जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कोई अपने घर बुला रहा था। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी ऊंटनी पर छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहां मैं कयाम करूंगा। ऊंटनी कहां बैठी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर। इसी सहाबी के घर क्यों बैठी?
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। रिवायत ये मिलती है कि दूसरे ही दिन अबू अय्यूब के पास, अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो लेटर मौजूद था जो बादशाह ने दिया था। वो खत मौजूद था जो कई सौ साल पहले बादशाह देकर गया था। वो उनकी औलादों में चलता आ रहा था और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक पहुंचा और वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मेरे अजीजों, इन ईसाइयों ने और यहूदियों ने मदीना भी बसाया मेरे नबी के इंतजार में, लेकिन जब वो रसूल हकीकत में आ गए तो इन्होंने क्या किया? इनकार दिया, ईमान लाने से इनकार नहीं माने, क्योंकि उस वक्त धंधा जोरों पर था। लोगों को जो बेवकूफ बनाने का धंधा है वो बाबागिरी में बहुत ज्यादा थे, ईसाई भी और यहूदी भी। लोगों को पागल बनाना, उनसे पैसे ऐंठना, ये कामों में मसरूफ थे। अगर वो नबी की तरफ लोगों को कह दें यही आखिरी रसूल है, यहाँ कैसे चलेगा फिर काम? इसलिए वो इनकार कर गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हवारियीन से, वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा और बीबी मरियम को ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं। किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। ईसाई कहते हैं नहीं वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें, न ईसाई सही कह रहे हैं न यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल हैं, वो असरा हैं, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे। कौन? यहूदी। 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेरे अजीजों। अब यहाँ पर बात बहुत ज्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूं, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चका। मुअज्जज़ सामिने इकराम, जैसा कि हम और आपने सुना कि हमारे नबी का जिक्र तमाम किताबों में किस तरीके से आया है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र किस तरीके से करवाया है। इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत अपने नातिया कलाम में कुछ इस तरीके से इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे,
ہے وہ अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुअज्जज़ सामीने इकराम, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का इल्म भरे बयान हम और आप देखते रहेंगे और कुछ न कुछ सीखने का कोशिश करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।